start. So we first we start from a very important topic, that is what happened. That is, you can say, a numerical solving strategy. Okay, how you solve numerical when you have this type of question. This is called the numerical solving strategy. Suppose you have a capacitor C. Suppose you have a capacitor C and you connect this capacitor with a battery V. So case 1, what we can say, case 1, what we can say, कि charge store is CV, energy store is half CV square. That is the case 1. What happened? You have a capacitor C, you have a capacitor C, which we charge with a battery of voltage V, okay, and the energy stored in the capacitor is half CV square. Now what happened? After full charge, remove battery and insert a dielectric slab of dielectric constant K. So what happened after full charge? Remove battery and insert a dielectric slab of dielectric constant K. So now what happened? You have the dielectric slab, but you remove the battery. As you remove the battery, your amount of charge store remain constant because charge is constant, you are conserved. And now the dielectric slab is K. So new charge, new capacitance, let it be C1. That is what happened. K into C, we know if we insert a dielectric slab, its capacitance increase K times, and V1 is the voltage. We can find out the value of voltage. Q1 is the total charge store after this, after inserting the dielectric slab, and Q is the total charge induced before this from the conservation of charge, because no extra battery is connected. So the charge remains constant or charge remains same. So initial is CV, the final is KC into V1. So V1 is V by K. So what we can say, ki voltage store, yeah, now the voltage of this one, if you not connected a battery, then it will be K times decrease. So energy store is half C1 V1 square, which is half Kc into V by K whole square. So what you have, half CV square by K. So this one is very, very important. So this is the case 1. This one is the case 2. When after full charge, remove the battery and insert a dielectric slab whose dielectric constant is K, then the capacitance K time increase, voltage K times decrease. Obviously, as the voltage decrease, electric field also K times decrease, charge remains same, and energy store K times decrease. So you can say this is the 1 by K times of the initial. Now case 3, third case is that you full charge and then insert the battery inside the dielectric constant K, but the voltage remains same. So now as the voltage remains same, so what changes are now happen? देखो क्या changes आएगा. पहला बात है कि capacitance, let it be C2, is K times increase. And voltage is V, voltage क्यों V हो गया? क्योंकि पहले जो voltage था अभी वही voltage हो गया. So voltage is remain V. Now the energy store, अच्छा, charge store is C2 V2. So what you have, K into C into V, that is K times of the initial charge store, K times of the initial charge store, and energy store is half C2 V2 square, that is half Kc into V square. So we have K into half
CV square, that means K into initial. So basically what happened, if you not connect the battery full charge and disconnect the battery and insert the dielectric slab, its energy store K times decrease. And if you connect with a battery and insert a dielectric slab, then your energy store K times increase, charge store K time increase, capacitance, so as you change the medium it will be K time increase, but the voltage is remain constant. That means only if the voltage is you connect, then the charge store is increased, otherwise charge store remain same. Now on the basis of that, on this one, on the basis of that, I can now give you one numerical which is very very important, which is very very important. So देखो क्या होगा, ये एक बार दिस क्वेश्चन एक बार सीबीएसई बोर्ड में आया था, आई थिंक 2 साल पहले, और उसका ठीक 1 साल पहले सेम क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी आया है. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन क्या है कि एक बैटरी है, इसके साथ एक यहाँ पे एक कैपेसिटर है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है CC और यहाँ पे एक स्विच है. सो क्वेश्चन ये है कि आफ्टर फुल चार्ज, क्वेश्चन है आफ्टर फुल चार्ज switch off, after full charge switch off and insert dielectric constant K equals to 4, dielectric constant K equals to 4 in both the capacitor, in both the capacitor. Find the energy, find the ratio of energy store initial by energy store final, or find the ratio of energy store when the switch is on and switch is off. Switch is on and switch is off. তোরা লেখাগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিস? হ্যালো হ্যালো স্যার, লেখাগুলো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার? একটু ছোট ছোট লাগছে। হ্যাঁ স্যার, একটু কাছে টানলে ভালো। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে এবার? So see, when the switch is on, so then what happened? This one is half CV square, this one is half CV square. So energy store initial is half CV square plus half CV square, that is CV square. And when the switch is on, off after full charge, when the switch is off after full charge, so you switch off means this one is open, and now you insert dielectric slab K in for both the capacitor. So now what happens, see clearly, as the switch is off, so the first one देखो ये V बोल्ट के साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी है. और इसमें क्या है, इसमें देखो ये V के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये ओपन है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब है. तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ जब ये ऑन था और ये स्लैब नहीं था, दैट इज द केस 1. और जब ये देखो स्विच ऑफ है तो ये किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये है केस 2 और ये हो गया केस 3. सो केस 2 में एनर्जी स्टोर क्या होता था? केस 2 में एनर्जी स्टोर होता था हाफ CV स्क्वायर बाई K, और केस 3 में क्या होता था? हाफ CV स्क्वायर इनटू K. सो ये क्या हो गया, एज यू स्विच ऑफ एंड इंसर्ट द स्लैब, देखो ये डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये ओपन है, तो इसका एनर्जी स्टोर K टाइम्स घट जाएगा, इसका एनर्जी स्टोर K टाइम्स बढ़ जाएगा. तो व्हेन द स्विच इज ऑफ, एनर्जी स्टोर इज हाफ CV स्क्वायर इनटू K प्लस हाफ CV स्क्वायर बाई K. तो अगर मैं हाफ CV स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, K प्लस 1 बाई K, सो इफ वी कंपेयर देम इनिशियल बाई फाइनल, तो ये हो गया CV स्क्वायर बाई हाफ CV स्क्वायर K प्लस 1 बाई K. तो यही इसको ही अरेंज करके क्वेश्चन बोला था. तो 1 बाई, अगर मैं 2 को ऊपर भी ले जाता हूं तो ये हो जाएगा K स्क्वायर प्लस 1 बाई K. सो ये आ जाएगा 2K बाई K स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ आंसर आया था
फॉर बोर्ड एग्जाम, ऐसा कुछ आंसर था फॉर बोर्ड एग्जाम। और इसी क्वेश्चन का एंट्रेंस में ये k का वैल्यू दे दिया था, सो कुछ भी नहीं 2 इंटू 4/4 स्क्वायर प्लस 1, मतलब 8/17 इज द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ एनीवन यू हैव एनी प्रॉब्लम, part is suppose arrangement of capacitor with dielectric slab. My next important part is arrangement of capacitor with dielectric slab. So देखो, suppose we have two plates like this. One is the plus and one is the minus. A is the plate area, A is the plate area, D is the separation, A is the plate area and D is the separation. And if we insert slabs like this, if we insert slab like this, so dielectric constant K1, dielectric constant K2, dielectric constant K3, and let this one is D1, this one is D2, this one is D3. तो ध्यान से देखो, ये मेरा सीरीज अरेंजमेंट है। कैसे ये सीरीज अरेंजमेंट हुआ? देखो, ये जो प्लस है मतलब ये पूरा का पूरा प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा। सो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब ये सीरीज अरेंजमेंट। ये एक तरीका हुआ समझने का। दूसरा तरीका है, देखो सीरीज अरेंजमेंट, हाउ यू अंडरस्टैंड इट्स अ सीरीज अरेंजमेंट, योर प्लेट एरिया रिमेन सेम। मतलब अगर मैं इस कॉपी का बात करूं या इस कॉपी का बात करूं, देखो अगर ये मेरा फ्रंट पेज है और ये मेरा बैक पेज है, तो बीच का जितना सारा पेपर है इसको हम पेपर कैपेसिटर मान सकते हैं। सबका अलग अलग देखो थिकनेस है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल सीरीज अरेंजमेंट, जिसमें सबका देखो प्लेट एरिया सेम है। तो सबका प्लेट एरिया सेम है, जब भी ये प्लेट एरिया सेम होगा दैट मींस दे आर सीरीज अरेंजमेंट। अब हम सीरीज अरेंजमेंट में क्या जानते हैं, 1/CS is equals to 1/C1, 1/C2, 1/C3. Now we know for this one it is K1, for this one it is K2, for this one it is K3. So what we can say, 1/CS equivalent is 1/K1 epsilon naught A by D1। देखो सेम प्लेट एरिया सबके लिए होगा, सबका थिकनेस अलग अलग होगा। मतलब इफ यू हैव डिफरेंट थिकनेस बट सेम प्लेट एरिया, दैट मींस दे आर सीरीज अरेंजमेंट। सो 1/K2 epsilon naught A by D2, 1/K3 epsilon naught A by D3. So क्या हुआ, ये हुआ 1/epsilon naught A if we take common, D1/K1, D2/K2, D3/K3 and so on. Now I can give you one example, तब तुम लोगों को ये ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे करके दो प्लेट रखा है, K1 एंड K2, इसका थिकनेस हाफ है, इसका थिकनेस हाफ है, लेट इट बी फिगर 1 या एग्जाम्पल 1। तो हाउ यू गेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर? तो वेरी सिंपल, 1/CS, that is 1/epsilon naught A according to this D1 is D/2 K1 plus D/2 K2। तो हम क्या लिखेंगे, D/epsilon naught A 1/2 K1 1/2 K2। तो हम इसको D/epsilon naught A 2 K1 K2 K2 plus K1 we can write। So CS is, हम लोग यहाँ पे लिखता है CS is epsilon naught A by D 2 K1 K2 by K1 plus K2। ये मेरा हो गया सीरीज अरेंजमेंट का दो का वैल्यू। अगर दो से ज्यादा है तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ फॉर पैरेलल अरेंजमेंट, नाउ फॉर पैरेलल अरेंजमेंट, तो पैरेलल के लिए हम लोग इसको हटा देते हैं। देखो अब मेरे पास क्या होगा, पैरेलल अरेंजमेंट।
तो पैरेलल अरेंजमेंट में व्हाट हैपेंड, we have this one is plus polarity, this one is minus polarity, but now the plates are inside like this. ठीक है, एक बड़ा सा इसमें वो तुम लोग वो पेपर वाला यूज करता है ना, ऐसे ढक्कन खोलते हो, यहाँ पे एक कलर का पेपर, यहाँ पे एक कलर का पेपर, यहाँ पे एक कलर का पेपर, सो इट विल बी लुक लाइक दिस. सो इसमें क्या होगा, देखो प्लेट सेपरेशन सबके लिए सेम, लेकिन प्लेट एरिया सबका अलग अलग, K1 K2, और देखो सब पॉजिटिव एक साइड में और सब नेगेटिव एक साइड में. लास्ट वाला में क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. यहाँ पे क्या है, ऑल प्लसेस आर इन वन साइड एंड ऑल माइनसेस आर इन वन साइड. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट. तो पैरेलल अरेंजमेंट में क्या हो गया, C1 C2 C3. तो हम लोग क्या लिखेंगे, K1 epsilon naught A1 by D, same separation. K2 epsilon naught A2 by D. K3 epsilon naught A3 by D. तो यहां से चाहे तो हम लोग epsilon naught by D को अगर कॉमन लेंगे, K1 A1, K2 A2, K3 A3 ऐसे लिख सकता है. वैसे मैं बोलूंगा ऐसे करके याद मत रखना, सिमिलर सिंपल जो वैल्यू है, अगर सीरीज है तो सीरीज में, पैरेलल है तो पैरेलल में, जो दिया है प्लेट एरिया कितना है, सेपरेशन कितना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना है, यू जस्ट पुट इट. अगर हम इसी के ऊपर बेस करके एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, ये मानो A/2 है, ये A/2 है, ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, ये K1 है, ये K2 है, सेपरेशन D है. तो पैरेलल में क्या होगा, सीरीज में तो इतना हुआ, इसको हम फिगर 2 लिख सकते हैं, फिगर 2. तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय D, वी कैन टेक डायरेक्ट कॉमन. तुम C1 प्लस C2 करके भी लिख सकते थे. सो K1 A1 by 2, A1 is A/2 and K2 A2 is A/2. So what happened, epsilon naught A by D, K1 by 2 plus K2 by 2. So what happened, epsilon naught A by 2 K1 plus K2 by 2. तो ये मेरा सीरीज अरेंजमेंट 2 के लिए, ये मेरा पैरेलल अरेंजमेंट 2 के लिए कैपेसिटेंस मैंने निकाल दिया. ठीक है, और ये अरेंजमेंट तो है ही. अब देखो ये जो अरेंजमेंट है, इसके ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चंस देखोगे तुम लोगों को मिलेगा. अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि this one is arrangement 1, this one is arrangement 2, this one is figure 1, this one is figure 2. Your final result is, you can write directly the final result. Final result क्या आया, final result आया epsilon naught A by D K1 plus K2 by 2. तो if K1 is not equals to K2, अगर इक्वल होने से तो इक्वल होगा, दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला कि ये वाला. तो देखो अगर जब भी ऐसा क्वेश्चंस आएगा, याद रखना एक मैथमेटिकल इनइक्वालिटी है, AP ग्रेटर देन इक्वल्स टू GP ग्रेटर देन इक्वल्स टू HP. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक, सॉरी AP क्यों बोल रहे हैं, सॉरी, अरिथमेटिक मीन, आई एम वेरी सॉरी, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिकल मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन. अरिथमेटिक मीन क्या होता है, A प्लस B by 2. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट अंडर AB. और हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2AB by A plus B. तो देखो ध्यान से देखो, A and B are two different thing. तो देखो क्लियरली दिख रहा है, ये जो है मेरा क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और ये जो मेरा है ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कि पैरेलल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सीरीज. कब, जब K1 is not equals to K2. तो इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी आता है. If you have any, I'm trying to read this question. ये this question is question number 38 from your sheet. Okay, this sheet. The first, the question is, the capacitors has square plate. That means, what do you mean by square plate? देखो ये जो vision है, ये तुम्हारा front vision है. That means ये back वाला भी है, मतलब अगर इधर है तो ये इधर भी होगा.
सो अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो ये हो गया स्क्वायर प्लेट। तो स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड L, तो स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड L मतलब व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट L स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ईच एंड सेपरेशन इज D, टोटल सेपरेशन इज D है, जो कि ये है D/2 और ये मेरा D/2 है। तो इसका ओवरऑल मैं अगर कैपेसिटेंस का बात करता, जब ये सब कुछ नहीं था, द कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A/D। सपोज ये मेरा कैपेसिटेंस था। अब क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ AB। तो देखो अगर इस प्लेट का ये L है, ये L है, और यहाँ पे मुझे अगर L/3 है, तो इसका ये L/3 है, ये 2L/3 है, और ये जो बेस है ये L है, तो ये वाला एरिया कितना होगा। देखो ये L है और ये L/3 है, तो ये वाला जो एरिया होगा ये A/3 होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, L into L/3, तो L square is A, so this is A/3। Similarly this one is L into 2L/3, so ये हो जाएगा 2A/3। ये कितना होगा, ये होगा A/3, ये होगा 2A/3। I think you all understand what you mean by this। अब देखो ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, दैट मीन्स ये पूरा प्लस, ये पूरा माइनस, ये पूरा प्लस, ये पूरा माइनस। सो दैट मीन्स यहाँ पे दो कैपेसिटर है, लेट इट बी C1, लेट इट बी C2, यहाँ पे दो कैपेसिटर है C3, C4। तो अगर मैं इसको एक प्लेट बोलूं A, ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पे है C1, यहाँ पे है C2, और इसके साथ ये सीरीज, इसके साथ ये सीरीज, तो मुझे करना क्या है, ये है सीरीज, ये है सीरीज, ये पॉइंट हुआ B। Hope you understand, this one is C1, C3 in series, C2, C4 in series, and these two are in parallel. So this is the main question. Now, if you want to find out, देखो ये वाला इसमें K/2 है, sorry. This one and this one, I think the same value, same plate area, same. So we can say C1 and C4, what is the value? Epsilon naught A, 2A/3, 2A/3 by separation is D/2 into K/2। फॉर्मूला क्या था, epsilon naught A/D into K1। So epsilon naught 2A/3, separation is D/2 and K/2। So देखो इसमें से क्या क्या कटेगा, ये 2 कट गया, ये ऊपर जाएगा, so 2/3 epsilon naught A/D into K, दोनों का सेम वैल्यू आया। अब देखो C3 and C2 का भी सेम वैल्यू होना चाहिए, सेम कैपेसिटेंस, सेम डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सेम सेपरेशन, epsilon naught, the area is A/3, separation is D/2 and dielectric constant is K। तो देखो क्या आया, ये भी आया 2/3 epsilon naught A/D into K। तो एक इसमें अच्छा चीज हुआ कि देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सबका सब सेम हो गया, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि C1, C2, C3, C4 का सेम वैल्यू कितना है, 2/3 epsilon naught A/D into K, और A कितना है, A का वैल्यू है L स्क्वायर, तो सेम वैल्यू है। सो सीरीज में क्या हो गया, C/2, और ये दोनों में भी सीरीज में है C/2, तो C/2 पैरेलल में क्या हो गया, C। तो AB का वैल्यू कितना हो गया, C मतलब कौन सा C, ये C, तो कितना हो गया 2/3 epsilon naught A/D into K। अब A का वैल्यू कितना है, L स्क्वायर, तो मुझे क्या लिखना है, 2/3 epsilon naught A/D, A का जगह पे L स्क्वायर into K, ये मेरा C of AB। So you understand this type of questions are very very important। इसके बाद अगर हम बात करें तो मोटा मोटी दैट वन इज योर सिलेबस। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ छोटा छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच आई कैन डिस्कस इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। We can write in that way।
very important information, very important information. एक के बाद एक करके हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो है कि अगर मैं देखूं कि ये मानो मेरे पास एक शेल है जिसका रेडियस r1 है और ये मेरा एक शेल है जिसका रेडियस r2 है, ये मानो A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। तो देखो पोटेंशियल एट A, जो कि हम लोग कैपेसिटर शुरू होने से पहले यही चीज पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट potential at A Q1 by R1 plus Q2 by R2 and potential at B 1/4 pi epsilon naught B पे, तो इसके लिए इस पे Q1 by R2 plus Q2 by R2। अब क्लियरली देखो as R2 greater than R1, इसका रेडियस ज्यादा है इससे, बाकी सब सेम है, तो रेडियस ज्यादा मतलब क्या, रेडियस ज्यादा मतलब वोल्टेज कम। सो एज R2 greater than R1 वी कैन से VB is less than VA, मतलब A का वोल्टेज ज्यादा B से। तो क्योंकि A का वोल्टेज ज्यादा B से, अब देखो इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट भी है, that is called Van de Graaff generator, which is now not in your syllabus. That Van de Graaff generator is now removed from your syllabus, but ये तो है, so they can ask you in entrance exam, can ask you so many good questions from that part. So what happened if you connected it with a conducting wire? This one is conducting wire. What happened if you connected it with a conducting wire? So देखो when you connect it with a conducting wire, ये जो हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल से चार्ज क्या करेगा, लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। कब तक? जब तक के दोनों का सेम पोटेंशियल नहीं हो जाए। तो ये तब तक अंदर से बाहर जाएगा जब तक दोनों का सेम पोटेंशियल नहीं हो जाए, और ये तभी सेम पोटेंशियल होगा जब पूरा का पूरा बाहर चला आएगा। क्यों? देखो मेरा पोटेंशियल एट बी कितना है, इतना है। अगर मैं पूरा चार्ज को बाहर ले लूं, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो, सो पोटेंशियल एट बी कितना है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 बाई R2। तो देखो ये और ये सेम हो गया ना, दोनों सेम हो गया ना। सो दोनों सेम होने का मतलब क्या है, इसका पूरा का पूरा चार्ज बाहर आएगा, then and only then it is possible। मतलब if you seen this type of question and if they connected by the plain wire, याद रखना पहला बात है पूरा अंदर का जो है चार्ज बाहर चला जाएगा, अंदर का चार्ज पूरा बाहर पे आ जाएगा, मतलब अंदर पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो मतलब इसका कैपेसिटेंस भी नहीं रहेगा। अब यही क्वेश्चन देके तुम्हें बोलेगा व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो देखो कैपेसिटेंस, दो शेल तो अब है ही नहीं, इसका पूरा चार्ज बाहर चला गया। तो जहां कनेक्टिंग बाय अ कंडक्टिंग वायर इसका पूरा चार्ज बाहर आ गया, मतलब इसका कैपेसिटेंस हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये हो गया कैपेसिटेंस स्फेरिकल शेल। So this one is your capacitance. So these are very important question. This type of question frequently entrance exam में पूछता है कि what happened if we move this one in the outer shell। अच्छा, इसके ऊपर बेस करके देखो और भी कुछ छोटा काफी सुंदर न्यूमेरिकल होता है। अब जैसे देखो मेरे पास ऐसे करके 3 शेल है, एक शेल, 2 शेल, 3 शेल, रेडियस R1, R2 एंड R3। और क्या किया, बाहर वाला को अर्थ कर दिया और एक को 2 से कनेक्ट कर दिया। तो देखो जहां एक को 2 से कनेक्ट कर दिया बाय द कंडक्टिंग वायर, एक का इसका पूरा चार्ज बाहर आ जाएगा, तो ये है ही नहीं। सो नाउ यू हैव बेसिकली 2 शेल, दिस वन एंड आउटर वन इज अर्थ। जब भी आउटर वन इज अर्थ, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, यू रिमेंबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस R2 R3 by R3 minus R2। देखो without thinking anything, fraction of second you can get the answer। हम लोग पैरेलल पे थे, 2 concentric spherical shells पढ़ा था, कैपेसिटर निकालना। सेम क्वेश्चन अब देखो ऐसे करके 1 2
3 शेल दिया है, मानो इसको अर्थ किया और इसको कनेक्ट किया, इसको अर्थ किया और इसको कनेक्ट किया। सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस? जब इनर वाला अर्थ होगा, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, इसका रेडियस r3। सो अब क्या हो गया? C इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर वाला को अर्थ करते हैं तो इसका नहीं रहा, तो ये दोनों रहा, तो अंदर वाला को करने से बड़ा वाला r3 का स्क्वायर बाई r3 माइनस r2। सो देखो, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अदरवाइज इट टेक्स सो मच टाइम। एक क्वेश्चन ऐसा अगर जबरदस्त क्वेश्चन, if you solve within a very fraction of time, so you understand how much you save your time for entrance exam. इसको छोड़ के और भी कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, जैसे हमारा जो अर्थ सराउंडिंग है, अर्थ जो एटमॉस्फेयर है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेने का क्षमता है, which is called breakdown electric field. So breakdown electric field for atmosphere. Obviously, Earth atmosphere is 3 into 10 to the power 6 volt per meter. 3 into 10 to the power 6 volt per meter. So my question is, what happens if the voltage is electric field is more than that? So if the electric field is more than that, then इसका जो क्षमता है इससे ज्यादा ये रख नहीं सकता है. So then what happened? Electrical energy converted into light energy. और इसी कारण से when the clouds are collide with each other, तो क्या होता है? When the stored energy is more than that, मतलब इसका जो सराउंडिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा हो जाएगा, it will ionize the electric field, means ionize the surrounding, sorry not electric field, it will ionize the surrounding, और जिसके कारण क्या होगा कि वो लाइट होके, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, और हम लोग क्या करते हैं? थंडरिंग का जो लाइटनिंग होता है, वो लाइटनिंग हम लोग को दिखाई देता है. इसके ऊपर भी देखो छोटा छोटा बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस आता है. जैसे एक क्वेश्चन आता है कि कैन अ स्फीयर और शेल of radius 1 meter can hold 1 coulomb charge. Justify your answer. Question क्या है? Can a sphere of radius 1 meter can hold 1 coulomb charge? Justify your answer. So देखो इसका मतलब क्या है कि एक 1 मीटर रेडियस का स्फीयर क्या 1 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है? जस्टिफाई करो. सो देखो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर. अब रेडियस कितना बोला है? 1 मीटर. और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम औकात, मतलब उसका लिमिट, उससे ज्यादा वो रख नहीं सकता है. वो जो मैक्सिमम औकात है वो है 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर. इससे ज्यादा वो रख नहीं सकता है, तो यही है इसका मैक्सिमम औकात. सो 3 into 10 to the power 6. अब इसका वैल्यू कितना है? 9 into 10 to the power 9. चार्ज कितना है मुझे चाहिए? रेडियस कितना है? 1 स्क्वायर. तो ये जो चार्ज आएगा ये आएगा 3 into 10 to the power 6 by 9 into 10 to the power 9, that is 1/3000, which is less than 1 coulomb. So the answer is no, not possible. अगर 1 मीटर रेडियस है तो ये मैक्सिमम 1/3000 कूलम चार्ज को स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं. सो 1 कूलम इज वेरी वेरी लार्ज वैल्यू. ये एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी बोल सकता है कि if a sphere of radius 1 meter, if a sphere of radius 1 meter, if a sphere of radius 1 meter, sorry, the next, इसको उल्टा के क्वेश्चन बोल सकता है कि what is the radius of a sphere to hold 1 coulomb charge. तो वेरी सिंपल बात है. देखो अब मुझे क्या करना है? E equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square. 3 into 10 to the power 6, 9 into 10 to the power 9 Q by R square. Q कितना बोला है? 1 कूलम, तो 1. So R square कितना हो जाएगा? 9 into 10 to the power 9 by 3 into 10 to the power 6, that means 3000. So R जो आएगा रूट अंडर 3000, ये है लगभग 54
0.57 मीटर। तो अगर एक स्फीयर और शेल जिसका रेडियस 554.57 मीटर हो तब वो इतना चार्ज स्टोर कर सकता है। कभी कभी क्वेश्चन को उल्टा करके बोल सकता है कि इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.25 मीटर, if a sphere of radius 0.2 meter 0.25 meter, how much is the maximum voltage of the sphere? So very simple, V equals to electric field into distance means radius. तो देखो तुम्हारा maximum electric field कितना हो सकता है, 3 into 10 to the power 6 into 0.25, so ये हो गया 0.75 into 10 to the power 6 volt या 7.5 into 10 to the power 5 volt तुम्हारा मैक्सिमम हो सकता है अगर रेडियस है 0.25 पर। इसीलिए हम लोग इससे वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाते हैं जिससे हम लोग हाई वोल्टेज वी कैन क्रिएट। तो इसको बोला जाता है डीसी ट्रांसफार्मर जो कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज दे सकता है। सो ऐसा सो मेनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू, ठीक है। सो अच्छा एक और चीज है, इतना कुछ जब बताया ये भी बता ही देता है, एक छोटा सा और चीज है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज दे गिवन यू टू पैरेलल प्लेट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड तुम्हें सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, प्लेट एरिया ए, तुम्हें बोलेगा हाउ मच इज द फोर्स अप्लाई बिटवीन द पैरेलल प्लेट। ज्यादातर बच्चा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर पैरेलल प्लेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, तो फोर्स इज क्यू ई, तो वो क्या करेगा क्यूब स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए, एंड आंसर इज रॉन्ग। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा क्या होगा देखो, मेरे पास दो प्लेट है, अगर मैं इसको एक सिंगल प्लेट लूं तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ये माइनस है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो चार्ज हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A. Now as you have negative plate, we know electric force is in the opposite direction, so force is in this direction, and this one is positive charge, so force is in the same direction. So electrostatic force for parallel plate capacitor is attractive in nature and its value is Q into E, that is Q into Q by 2 epsilon naught A, that is Q square by 2 epsilon naught A is the force, ना कि Q by epsilon naught A. कभी कभी इसमें क्या बोलता है, इस प्लेट का मास बोल देता है m है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन, सो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा Q square by 2 epsilon naught A into m। अब देखो ये दोनों का बीच का सेपरेशन d है, दोनों a एक्सीलरेशन से अगर जाएगा तो कितना टाइम में ये कोलाइड करेगा, सो s इज हाफ a t स्क्वायर, s इज d अगर लेते हो तो देखो इधर भी a है इधर भी a है, तो ये मीट कहाँ पे करेगा, एक्चुअली हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखना है d बाई 2 हाफ a इज q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a m इंटू t स्क्वायर। सो मेरा t स्क्वायर कितना आएगा, t स्क्वायर आएगा 2 2 4 1 2 काट सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 4d एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ओहो सॉरी 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 क्या काटा, सॉरी 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 ये कटा, सॉरी टी स्क्वायर इज, ये चला जाएगा 2d एप्सिलॉन नॉट a m by q square, so t is root under 2d epsilon naught a m by q square is the answer. This one is the time taken to collide them. So ये मेरा मोटा मोटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स